فرد سراپا بفراغت وہ ہے تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینی ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ کا بہت بہت سواگت ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے میرے چینل اور آپ کے ہی چینل یعنی دینی اسلامک چینل میں۔ تو ابھی جو حضرت کی جو آپ تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور آگے سماعت فرمائیں گے تو ان کا نام ہے حضرت علامہ و مولانا محمد حامد رضا مصباحی صاحب قبلہ، جو کہ میرے علاقہ کے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حضرت کو دعوت دوں اپنے پروگرام میں، اپنے جلسہ میں، اپنے جلوس میں، تو میں حضرت کا نمبر ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں، سو آپ جا کر وہاں سے لے لیں، آپ وہاں سے نمبر نکال سکتے ہیں اور حضرت کو دے سکتے ہیں اور اپنے پروگرام کو، اپنے جلسہ جلوس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ حضرت کی طرح ہم تقریر کریں، حضرت کی طرح میں بھی بیان کروں، حضرت کی طرح میں بھی اسپیچ دوں، تو میرے چینل یعنی دینی اسلامک چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت کے اجازت کے مطابق میں حضرت کی تقریر کو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی بیانات سے میں واقف ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ۔ ہم جانتے ہیں کہ شیر باؤنس ہو گیا، ہم جانتے ہیں کہ شیر باؤنس ہو گیا، اگر ہم باؤنس ہونے نہیں دیں گے ہم اس کو سمجھائیں گے۔ ذرا بچا کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ تعبیر میں غور سے سنو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو 100 فرد سراپا و فراغت اور ہے تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو نیما تیرا۔ نیما کا معنی ہوتا ہے چادر، بولیے نا سبحان اللہ۔ تو اس چادر سے مراد ہماری چادر، منتہا بھائی کی چادر، مختار بھائی کی چادر مراد نہیں ہے، چادر سے مراد چادر ولایت ہے۔ سبحان اللہ۔ چادر سے مراد چادر ولایت ہے، اور اس میں ایک لفظ آیا ہے فرد، اس کو 100 فرد سراپا بفراغت اوڑھے۔ یا فرد سے مراد ہم وہ فرد نہیں لیں گے کہ جب شادی کا کھانا بن رہا ہو تو کہا جاتا ہے یہ 1 فرد کا ہے، یہ 2 فرد کا ہے، یہ 3 فرد کا ہے، تو ہم فرد سے مراد تعداد لیتے ہیں، لیکن یہی فرد جب ولایت کے میدان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی تعداد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ جس طرح یہاں پر اسٹیج پر جب یہ ہمارے ممدوحین موصوفین جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ہمارے قاری صاحب قبلہ ہیں، حضور شیر بہار کی میت میں، سفر میں، حضر میں ساتھ رہے، اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے قاری محمد رضا صاحب قبلہ ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے، ہمارا مرتبہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ولیوں کا بھی مقام رکھا ہے، ولیوں کا بھی مرتبہ رکھا ہے، ان میں کوئی غوث ہوتا ہے، ان میں کوئی قطب ہوتا ہے، ان میں کوئی ابدال ہوتا ہے، ان میں کوئی اوتاد ہوتا ہے، کوئی قطب الارشاد ہوتا ہے، کوئی قطب الاغیاث ہوتا ہے، کوئی پیر پیرا ہوتا ہے، کوئی میر میرا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا ہے جن سے ہمیں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سمجھ کے بولیے سبحان اللہ۔ انہی ولیوں میں سے ایک ولی جن کو فرد کہا جاتا ہے، باچہ صاحب قبلہ کیا کہا جاتا ہے؟ فرد کہا جاتا ہے۔ لیکن فرد کن کو کہا جاتا ہے؟ فرد ان کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، مچل کے بولیے سبحان اللہ، کہ فرد ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کی چادر ولایت کو اگر پھیلا دیا جائے تو اس میں 7 آسمان 7 زمین ان کی چادر میں سما جائے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ فرد کی فردیت کا معاملہ ہے کہ اگر فرد کی فردیت کو اگر پھیلا دیا جائے تو 7 آسمان 7 زمین اس میں سما جائے۔ آج یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حصہ اول میں اعلیٰ حضرت ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا حضور فرد کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اعلیٰ نے فرمایا تھا کہ فرد کس کو کہا جاتا ہے اس واقعے سے سماعت فرماؤ جو واقعہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے۔ مسلم بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، بزرگ کی بارگاہ میں ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ابھی یہاں مجمع لگا ہوا ہے، ہمارے قاری صاحب قبلہ ہمارے احباب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے سامنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کا ایک ولی بیٹھا ہوا ہے، ان کے سامنے ان کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے مریدین میں سے ایک مرید نے کہا تھا کہ حضور ہم نے خضر علیہ السلام کا نام تو سنا ہے لیکن اتنا بتایا جائے کیا وہ آج بھی موجود ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ اتنا سننا تھا۔ ولی فرماتے ہیں سنو سنو، ابھی تیرے آنے سے پہلے خضر علیہ السلام آئے تھے جن سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں
हैं जब खिज़र अलैहिस्सलाम आए तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के वली, मैं जब आ रहा था आपके पास, जरा गौर से इस वाक़े को समाप्त फरमाइए कि जब मैं आ रहा था तो मैंने एक टीले पे देखा कि एक नूर रोशन हो रहा है। सुभान अल्लाह, नूर रोशन हो रहा है। वो बुजुर्ग खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं करीब गया मैंने देखा कंबल ओढ़े हुए एक अल्लाह का वली सोया हुआ है। मैंने पाँव के अंगूठों को पकड़ के मैंने हिलाया और मैं कहा उठिए, सोने का वक्त नहीं है बल्कि अल्लाह का जिक्र कीजिए। बचन के बोलिए ना सुभान अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा खिज़र आप जाइए, मुझे अपने हाथ में छोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर, इतना कहना था बुजुर्ग से खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुजुर्ग आप कौन है, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो मैं मशहूर कर दूंगा कि आप अल्लाह के वली हैं। तो वली ने कहा मैं भी मशहूर कर दूंगा कि आप खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। नहीं उन्होंने मशहूर किया, न उन्होंने मशहूर किया, बल्कि बुजुर्ग ने दुआ दी गफ़रल्लाहु हसका मिन्हु, अल्लाह ताला अपनी माफ़त में आपका हिस्सा ज्यादा करे। जरा मज़हब के लोग भी सुभान अल्लाह। सलाम फरमाते हैं मैं उससे और आगे गया, मैंने देखा दूसरे टीले पे एक कंबल ओढ़े हुआ एक इंसान सोया हुआ है, उसके कंबल से नूर का फव्वारा निकल रहा है जो आसमान तक जा रहा है। आप फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने जगाना चाहा, गैब से आवाज आई खिज़र जरा होश के नाखून लीजिए, ये कोई अल्लाह का वली नहीं है बल्कि अल्लाह की वली चलती हुई है। इतना सुनना था। खिज़र सलाम ने कहा अल्लाह की वलिया उठिए, अल्लाह की याद कीजिए, अल्लाह की फिक्र कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। इतना सुनना था। अल्लाह की वलिया कहती है कि जाइए खिज़र सलाम आप अपना काम कीजिए। खिज़र सलाम ने कहा आप मेरे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने कहा दुआ करना आपका काम है। खिज़र सलाम ने कहा अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो मैं मशहूर कर दूंगा आप अल्लाह की वली क्या है। उन्होंने कहा जाइए मशहूर कर दीजिए, मैं भी मशहूर कर दूंगी कि आप खिज़र अलैहिस्सलाम। मतलब कि बोलिए ना, न इन्होंने मशहूर किया न उन्होंने मशहूर किया बल्कि दुआ दी गफ़रल्लाहु हसका मिन्हु। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते उस बुजुर्ग से कि वो जो दोनों सोने वाले थे बुजुर्ग, एक अल्लाह का वली था एक अल्लाह की वलिया थी। वो वलिया वो अल्लाह के वली की बीवी थी। एक अल्लाह की वलिया का इंतकाल हुआ था, उन्हीं के तजहीज़ व तकफीर के लिए अल्लाह ने उन दोनों को भेजा था। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं वो दोनों ये फर्द थे। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फर्द का मकाम ये होता है कि वो जब चाहे तो खिज़र अलैहिस्सलाम की निगाह से भी वो गायब हो जाते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी निगाह से कोई गायब नहीं हो सकता है। रब ताला ने मुझे तमाम वलियों की मदद में मुझे मामूर किया है, लेकिन वली साहब को कहा जाता है कि वो जब चाहे मेरी निगाह से भी वो गायब हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। आला फरमाते हैं ये अफराद है अगर ये अपनी चादर विलायत को अगर उतार दे तो उनके चादर विलायत में सातों आसमान आ जाए, सातों जमीन आ जाए। मेरे रज़ा फरमाते हैं लेकिन सुनिए आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो गौसे पाक को चादर विलायत अता की है उस चादर विलायत की क़यामत का आलम ये है कि सातों आसमान छोड़ो, सातों जमीन छोड़ो, बल्कि मेरे गौसे पाक जिस चादर विलायत को आप उतार देते हैं उसको सौ दफा अगर चाहे तो बफरागत हो सकते हैं। रब ताला सबको उसमें सवाई अता फरमा देता है। आप फरमाते हैं उसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े तंग होकर जो उतरने को हो नहीं बात रब के बोलिए बस एक शेर उसके बाद अपने उन्वान पे आता। आला फरमाते हैं जो तेरा तिफल है कामिल है या गौर, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौर। मतलब ये बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो तेरा तिफल है कामिल है या गौर, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौर। तिफल से मुराद यहाँ बच्चा और तुफैली से मुराद बच्ची, लेकिन यहाँ बच्चा से मुराद मुरीद और बच्ची से मुराद मुरीदा। बदल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको बताऊं किताब में लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान तफसूनी रहमतुल्लाह ताला। क्या नाम है? हज़रत अब्दुर्रहमान तफसूनी रहमतुल्लाह ताला। बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्हें ये फख्र था कि मैं बहुत बड़ा वली हूँ, मुझसे बड़ा वली इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। अपने मुरीदीन के दरमियान बैठे हुए थे और फ़ख्रिया इरशाद फरमा रहे थे अना बैनल औलियाई कल करकी अतअल उलका हो। मैं वलियों के दरमियान ऐसे हूँ जैसे
उनके दरमियान एक हुजूर गौसे पाक का मुरीद बैठा हुआ है। बचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुरीद बैठा जिनका नाम हजरत शेख अहमद, क्या नाम था? हजरत शेख अहमद। उन्होंने जब देखा कि मेरे गौसे पाक के मुकाबिल में ये अपने आप को बढ़ा के रहे, उन्होंने अपनी गुदड़ी उतार करके फेंक दी, अपनी गुदड़ी उतार करके फेंक दी, खड़े हो गए और कहा अब्दुल रहमान मैं आपसे मुकाबला करूंगा। क्या कहा? अब्दुल रहमान मैं आपसे मुकाबला करूंगा। नाफ से लेकर ऊपर तक आपका पूरा जिस्म खुला हुआ है, नाफ से लेकर घुटने तक आपका पूरा जिस्म ढका हुआ है, क्योंकि मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ये ढकना फर्ज है। कि नाफ से लेकर घुटने तक ये मर्द के लिए ढकना क्या है? फर्ज है कि हाथ से ऊपर पूरा बदन खुला हुआ है। अब्दुल रहमान तफसीर ने एक मर्तबा देखा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, पैर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक, एक मर्तबा देखा, दो मर्तबा देखा, तीन मर्तबा देखा और कहा बैठ जाओ। उनकी मुरीदीन ने कहा हुजूर आप मुकाबले की दावत दे रहे हैं, आप कहते हैं बैठ जाओ, आप मुकाबले के लिए क्यों तैयार नहीं होते हैं? लेकिन मैं सुन रहा था बुजुर्ग फरमाते हैं, अब्दुल रहमान फरमाते हैं जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते हो। मैंने इस आदमी के बदन के रोए रोए से मैंने देखा है कि अगर बदन मिला के फवारे निकल रहे हैं जिसे फरिश्ते ले जा रहे हैं। नारे रिसालत, सदके आला हजरत, गौसे आजम, नारे तकबीर। हुजूर गौसे पाक के मुरीद से उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुम मुरीद किन के हो? मतलब के बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहा मुरीद किन के हो? कहा मैं सुल्तानुल शेख शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद हूं। जरा मतलब के बोलिए सुभान अल्लाह। अब्दुल रहमान तफसीर जी ने कहा मैं 12 साल से कुर्बे खुदावंदी में जाता भी हूँ आता भी हूँ, लेकिन मैंने तो मैं तुम्हारे पीर को कभी नहीं जाते देखा, मैं कभी आते देखा। अब्दुल रहमान तफसीर जी ने अपने 2 मुरीदों को बगदाद भेजा और कहा जाओ अब्दुल कादिर से कह दो कि मेरे पीर और मुर्शिद 12 साल से वो बारगाह इलाही में जाते भी है आते भी है, लेकिन कभी आपको आते जाते ना देखा। इधर से इनके 2 मुरीदीन चले, उधर गौसे पाक को बगदाद मोहल्ला में खबर हो जाती है कि अब्दुल रहमान के 2 मुरीद आ रहे हैं जो अल्लाह का वली होता है। रब ताला उनकी मार्फत को वो जिलाता फरमाता है कि बैठा होता है बगदाद में और मदीने वालों की खबर रखता है, बैठा होता है मदीने में हिंदुस्तान वालों की खबर रखता है। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने अपने 2 मुरीदों को भेजा, कहा जाओ रास्ते ही से उनके दोनों मुरीदों को वापस ले जाना और वापस ले जाने के बाद अब्दुल रहमान से कह देना कि सुनो जो दालान में बैठा हो, जो सहन में बैठा हो, उसका मकाम व मर्तबा क्या जाने जो दालान में बैठा हो, और जो दालान में बैठा हो उसका मकाम व मर्तबा क्या जाने जो घर के अंदर बैठा हो, और जो घर के अंदर बैठा हो उसका मर्तबा क्या जाने जो नेहा खाने खास में बैठा हो। हुजूर से बात फरमाते हैं जाओ अब्दुल रहमान से कह देना कि अब्दुल रहमान 12 साल से आते हो, 12 साल से जाते हो, लेकिन सुनो तुम्हारा मकाम सहन वाला होगा। अब्दुल कादिर का मकाम वो मकाम है जो रब की मार्फत के साए तले रहता है। जिस रात का ताला है तुम्हें चादरें मिलाए तका की बात है, वो हरे रंग की चादर थी और सोने के पानी से कुल वल्लाह लिखा हुआ था। जिस पर तुम्हें दी जा रही थी वो अब्दुल कादिर बैठा उसे मुआवजा करता। जब हुजूर गौसे पाक के मुरीद आए, आने के बाद जब अब्दुल रहमान तफसीर जी से कहा तो अब्दुल रहमान तफसीर जी ने कहा सदका शेख अब्दुल कादिर हुआ सुल्तानुल वक्त, सच कहा है अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वक्त के सुल्तान है। पहली के ताजदार कहते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा।